Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. In this video, we are going to learn the chapter, A House is Not a Home, which is chapter number 8 of the book Mermaids. Let us start up this chapter, A House is Not a Home, written by Zan Giudioso, is a very interesting story of a teenager. So the title says, A House is Not a Home. What does it mean? Let's talk about the title first. The title is that a house will not be called a home if your loved ones are not living along with you. If you do not find the love in your home, that means that is a house which is made up of bricks, cement. But a house becomes a home when you have your loved ones living with you, the people who care for you, whom you also love. So that is the title, A House is Not a Home. Fine. So the story highlights the difference between a house and a home. While a house is a building where people live, as I have told you, house is considered to be a building. A home is a place where a family lives together, where they are sharing a unique bond of love and oneness, where they love each other. The narrator's house gets destroyed. There is a teenager whose name is Zan, and his house is destroyed by fire, and he gets a new house built. Then he realizes that the home is the one built by love and the affection of the family and loved ones. So he realizes it that his life was getting changed with the rebuilding of his house that was burnt completely. And he realized that there have been people who loves him. There have been people who love him. I'm really sorry. Love and affection of one's family are precious. And he also realized that if somebody is loving you or is showing affection towards you, that is the precious thing in the world. Let us start the chapter, A House is Not a Home, lesson number 8. तो बेटा यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जब वो बच्चा जो है, जो वो टीनेजर है, जब वो हाई स्कूल में एंटर करता है. एंड व्हेन ही वाज इन द जूनियर स्कूल, he was at the head of the school, head of my class. That means he was the most intelligent child. He was the senior most class there. He was enjoying the superiority there, seniority there. लेकिन अब यहाँ आके as a freshman, as a fresher, उसको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, उसको थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो रहा है. और ये जो स्कूल है, द न्यू स्कूल, द हाई स्कूल ही हैज बीन इन इज बिगर देन द ओल्ड स्कूल, बट ही डज नॉट हैव द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स व्हिच ही हैड इन द लास्ट स्कूल. सो और जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो अलग अलग हाई स्कूल्स में चले गए थे, तो इसलिए वो क्या फील करता था, ही यूज्ड टू फील आइसोलेटेड, ही यूज्ड टू फील अलोन. ठीक है. सो अब क्या हुआ, ही वाज मिसिंग हिज ओल्ड टीचर्स, ही यूज्ड टू गो एंड विजिट देम. And they would encourage him, and the teachers, the old teachers, the school of the old teachers were telling him that try to get involved in the new school and you would soon be involved. देखो बच्चा, ऐसा होता ही है जब आप किसी नए एटमॉस्फेयर में जाते हैं, नई क्लास में जाते हैं, आपको नए बच्चे मिलते हैं, नया एटमॉस्फेयर मिलता है. शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन विद इन a few weeks you are adjusted to that environment. So उसके जो स्कूल के टीचर्स थे पुराने स्कूल के, वो भी उसको यही समझाते थे that you would adjust in the new school. और वो ये भी कहते थे that because they were experienced one, वो ये कहते थे कि तुम अपने नए स्कूल को इतना प्यार करने लग जाओगे कि तुम हमें भूल जाओगे. और नए टीचर्स ने, पुराने टीचर्स ने उनसे प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा होगा तो तुम्हें हमें प्रॉमिस करना पड़ेगा that you would come and meet us when you would start loving your new school more than the old school, because they were seniors and they understood the psychology of students, of children. ठीक है. अब आगे क्या हुआ, दिस इज ओवर. अब वन संडे आफ्टरनून ही वाज सिटिंग इन हिज डाइनिंग रूम एंड ही वाज डूइंग हिज होमवर्क. इट वाज कोल्ड आउटसाइड, द विंड वाज ब्लोइंग आउटसाइड. तो उनके घर में जो फायर प्लेस था, वहां पे फायर जो थी वो जल रही थी. एंड ही हैड हिज पेट which was a red tabby cat. Tabby का मतलब होता है grayish and brownish in color. तो he had a red color tabby cat. He had it. वो उसके पेपर्स पे ही बैठी हुई थी, and she was purring loudly. Purring, the sound of the cat, continuous sound of this cat is there, and it was purring loudly, or it was sweating. Sweating means hitting at his pen also. So that means he was enjoying a good time with his cat, and he was at the other side he was studying also. ठीक है. वो जो कैट थी वो कभी उससे दूर नहीं हुई थी. और जब वो कैट उसके घर में आई कैसे थी, व्हेन इट वाज अ किटन, जब वो छोटी कैट थी तो उसको उसने रेस्क्यू किया था कहीं से. ठीक है. तो दैट कैट came to him in that way. Okay. जो उसकी मदर थी वो क्या कर रही थी, she was stoking the fire. Stoking मतलब she was adding the wood to the fire or fuel to the fire, जिससे घर जो है वो warm रहे. Suddenly उनको कुछ अलग सा स्मेल होने लगा, तो उन्होंने देखा कि smoke was pouring in through the seams of the ceiling. जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, सीलिंग के जो कॉर्नर्स हैं, जो सीम्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं,
जहाँ से ये सीलिंग्स मिलती है, वहां से जो स्मोक था दैट वाज फिलिंग अप इन द रूम एंड इट वाज सो ग्रेजुअल, इतना इतना धीरे धीरे वो आ रहा था और इतने इन द अदर इंस्टेंट द कंप्लीट रूम वाज कवर्ड विद स्नो कि उनको ग्रोप करके अपना अपना रास्ता बाहर ढूंढना पड़ा. ग्रोपिंग our way to the front door. Groping मतलब making our way by touching. They were not able to see anything. They were barely they could barely see anything. So they were groping. वो चीजों को टच कर करके हम अपने फ्रंट डोर के सामने आए and they came outside. So they ran into the yard. After that, what happened? And he ran to the neighbors. वो neighbors के घर भागा और उसने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया. और मैं जब जब जो ये जैन था, he was running to the neighbors. His mother was running into the burnt house. वो जो घर जल रहा था उसके अंदर भाग रही थी. ठीक है. और वो क्या लेके आई? एक स्मॉल मेटल बॉक्स she brought from the house. ठीक है. उसने वो जो बॉक्स था वो बाहर लॉन में रखा और वो दोबारा घर के अंदर भागी. और जो ये लड़का था जैन, he knew that what was his mom after. उसकी मॉम क्या लेने के लिए अंदर भाग रही थी? उसे पता था कि उसके जो फादर की डेथ थी वो हो गई थी जब वो बहुत यंग था. तो जो उसकी मदर थी, she did not want that his pictures, his father's pictures and letters should be burnt in fire. उसकी जो मदर थी वो चाहती थी कि उसके फादर की जो फोटोज थी और जो लेटर्स थे वो फायर में बर्न नहीं होने चाहिए और वो उनको कलेक्ट करके बाहर ला रही थी. बट ही वॉज वरीड अबाउट हिज मदर. वो चीख रहा था, मॉम प्लीज डोंट गो इन. ठीक है. अब वो भी अपनी मदर के पीछे उस घर में भागना चाहता था बट सडनली ही वाज हेल्ड. उसको किसी ने पकड़ लिया. तो हु वाज ही वाज अ फायरमैन. ठीक है. उसने नोटिस भी नहीं किया था कि पूरी स्ट्रीट जो थी वो फायर ट्रक से भरी हुई थी. एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू गेट द फायर. वो जो फायरमैन थे वो कोशिश कर रहे थे कि जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश किया जाए. ठीक है. और मैं अपने आप को उनके हाथों से छुड़वा रहा था बिकॉज आई वांटेड टू गो इन अलोंग विद माय मदर एंड हेल्प हर आउट बिकॉज आई वाज वरीड अबाउट हिम. ठीक है. अब क्या हुआ? फायर फाइटर्स ने वो घर के अंदर घुस गए थे. ठीक है. और वो लॉजिकली ही एक्ट कर रहे थे. मेरे ख्याल से मैं इलॉजिकल था दैट आई वांटेड टू गो इन व्हेन द हाउस वाज बर्निंग. और उन्होंने मुझे बोला दैट योर मदर वुड बी फाइन, डोंट वरी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उस बच्चे को, जैन को, एक ब्लैंकेट दिया और उसे बिठा दिया एक कार में. ठीक है. अब थोड़ी देर के बाद व्हाट हैपेंड? थोड़ी देर के बाद दे ब्रॉट हिज मदर आउट. उसको, उसकी मदर को भी बाहर लेके आए टो में. मतलब टो मतलब समझ लीजिए स्ट्रेचर पे वो उनको उसको बाहर लेके आए और उन्होंने उनको ट्रक तक ले गए. उनके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगाया. दैट मींस जो अंदर स्मोक था, बिकॉज ऑफ दैट स्मोक शी वाज अनकॉन्शियस. तो ही स्टार्टेड हगिंग हिज मदर. ठीक है. और ये लाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चैप्टर का. आई एवर आर्ग्यूड विद हर, दिस लाइन, ऑल दोस टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिश एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. कि मुझे वो जो समय था जब मैं अपनी मदर से आर्ग्यू किया करता था और मुझे कभी कभी अपनी मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा आया करता था जब वो मेरी बात नहीं मानती थी. तो वो सारी थॉट्स मेरी वेनिश हो गई थी, गायब हो गई थी जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी मदर कहाँ है, उनको कुछ हुआ तो नहीं है. तो ही रियलाइज्ड द वर्थ ऑफ हिज मदर व्हेन हिज मदर वाज इन द danger. Okay, तो फायरमैन ने कहा that your mother would be okay. She has inhaled a little smoke and she would be okay. अब उसकी मदर को, she was gaining consciousness. वो अब दोनों जो है वो घर को जलता हुआ देख रहे हैं. आप सोचो अपने घर को जलता हुआ देखना क्या बात हो सकती है. ठीक है. What happened? 5 hours later, the fire was out. पूरी फायर बुझ गई थी. लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हो बेटा, बिकॉज जब वो घर जल रहा होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटी 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 फायर जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं. एवरीथिंग इज हॉट, यू कैन नॉट गो इन एंड फाइंड आउट योर थिंग्स. ठीक है. तो एकदम से नरेटर को याद आया दैट ही हैड नॉट सीन हिज कैट. हिज कैट वाज सिटिंग देयर एट द टेबल अलोंग विद हिम व्हेन दे वर रनिंग आउट. तो अब उसको लगा कि वेयर इज माय कैट. ही कुड नॉट फाइंड हिज कैट. अब उसको लग रहा था न्यू स्कूल, आपको याद है ना, उसको न्यू स्कूल में जाना अच्छा नहीं लग रहा था. अब सेकंड चीज हो गई फायर, घर पे आग लग गई. और तीसरी चीज उसकी कैट, द पेट whom he loved so much. तो all the three things made him, broke him down in tears. मतलब ये जो तीनों चीजें उसको याद आई. नया स्कूल जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता, मुझे सब कुछ चेंज लगता है, मेरे घर में आग लग गई है, मेरी कैट. सो एवरीथिंग मेड हिम क्राई. ठीक है. अब फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस. हमें फायरमैन ने उस रात अपने घर पे नहीं जाने दिया क्योंकि इट वाज स्टिल डेंजरस. मैंने आपको कहा ही था. लेकिन वो अपने कैट को जानना, देखना चाहता था कि चाहे मुझे डेड मिले चाहे अलाइव मिले, आई वांट टू सी वेयर माय कैट इज. ठीक है. बट स्टिल वी पाइल्ड इनटू द कार. हमें कार में बैठे, जो हमने क्लोथ्स पहने हुए थे सिर्फ वही थे हमारे पास, और कुछ ब्लैंकेट्स थे जो फायरमैन ने हमें दिए थे, और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर उस रात चले गए. वी स्पेंड दैट नाइट at our grandparents' house. अब next day Monday था. I had to go to school. I was not ready to go to school because I did not have any good dress to wear to the school. So जो मैंने वो ड्रेस पहना था उसी दिन, जो मैं चर्च पहन के गया था जिस दिन मेरे घर में फायर हुआ था, वही मैं ड्रेस पहन के स्कूल गया. मेरे पास शूज भी नहीं थे क्योंकि मैंने शूज उतारे थे और मैंने उनको किक कर दिया था. मैंने उनको कॉर्नर पे रख दिया था और वो जल गए फायर में.
ठीक है, तो मैंने कुछ मेरी मदर ने मेरे लिए बोरो किए टेनिस शूज मेरी आंट से। ठीक है, तो और मेरी मदर चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, बट आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, आई वाज फीलिंग अशेम्ड। जो क्लोथ्स मैंने पहले में थे मैं वियर्ड लग रहा था, मेरे पास बुक्स नहीं थी, मेरे पास होमवर्क नहीं था, मेरा बैकपैक नहीं था, मेरा बैग मेरे पास नहीं था। तो वो बैग मेरी लाइफ थी, दैट वाज नॉट विद मी। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक गीक जैसा हूँ। गीक मीन्स दैट्स सोशली इनकैपेबल पर्सन, कि मतलब मैं एक स्ट्रेंज अजीब सा क्रीचर हूँ, ऐसा मैं लगूंगा स्कूल जाके। बट हिज मदर वाज नॉट लिसनिंग टू हिम एंड ही शी वांटेड दैट ही शुड गो टू स्कूल। और मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आई कैन नॉट फेस एवरीथिंग नाउ, बिकॉज माई लाइफ इज सो मच टेरिफाइंग नाउ। चलिए, अब वो स्कूल पहुंच गया एंड ही वाज वॉकिंग इन द स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। अब आपको लगेगा ज़ॉम्बी जो आजकल आप मूवीज देखते हैं, डेड पर्सन जो अलाइव हो जाते हैं, वो ज़ॉम्बी होता है, लेकिन ज़ॉम्बी का मतलब होता है एक डल पर्सन, एक इनएक्टिव पर्सन को भी हम ज़ॉम्बी कहते हैं। तो कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ज़ॉम्बी के जैसा हूँ। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, मुझे हर चीज सरियल मतलब वियर्ड लग रही थी। सरियल मीन्स स्ट्रेंज लग रही थी। ठीक है, एवरीथिंग मुझे ऐसा लगा था कि कुछ है ही नहीं मेरा यहाँ पे। ठीक है, all the security that I had, जब मैं पुराने स्कूल में था, I felt secure, I had my friends there, my house made me feel secure, my cat made me feel secure, but everything has been taken away from me. So he was very much depressed. अब क्या हुआ? After the school that day, he wanted to go and find out in his house, जहाँ पे उसके जो हाउस जो था, जहाँ पे सब कुछ सामान पड़ा हुआ था, जो जला हुआ सामान था, वो सब कुछ वहां पड़ा हुआ था। ही वॉन्टेड टू गो देयर एंड फाइंड आउट, तो ही वेंट देयर। ठीक है, लेकिन जब वो वहां गया तो देखा, देखो जो फायर ब्रिगेड होता है बेटा, उसके ऊपर वो पानी के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी थ्रो करते हैं। तो पानी की और केमिकल्स की वजह से जो जितनी भी चीजें थी, जितनी भी चीजें जली नहीं थी, तो वो खराब हो चुकी थी। तो उनके पास बचा क्या था? जो फोटो एल्बम थी, और जो डॉक्यूमेंट्स थे, और कुछ पर्सनल आइटम्स थे जो उसकी मदर ने बचा ली थी हीरोइकली। आपको याद है ना, शी वेंट इनटू द बर्निंग हाउस एंड शी ब्रॉट बैक द चेस्ट एंड शी केप्ट इट आउटसाइड। तो वो लेके जो आ रही थी, जो उसने कुछ बचा लिया, वो कुछ बचा हुआ था, अदरवाइज सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, लेकिन अब दुख करने का टाइम नहीं था। ठीक है, मेरी मदर मुझे वहां से लेके आई और हमने एक घर ढूंढा। ठीक है, एंड आई वुड हैव टू गो एंड बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने थे। ठीक है, लेकिन उनको मनी भी बोरो करना पड़ा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड्स, जो उनके पास कैश था, उनके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स थे, एवरीथिंग हैड बीन बर्न्ड, सब कुछ जल चुका था। तो दे हैड टू बोरो मनी। तो दैट वीक द रबल, रबल मीन्स जो रेमिनेंट्स थे, जो घर के बची हुई टूटे हुए ब्रिक्स और स्टोन्स, और जो रेमिनेंट्स थे घर के बचे हुए, तो वो उसको उठाया जा रहा था, उसको साफ किया जा रहा था, जिससे वहां पे नया घर बन सके। और उसके घर के पास ही उन्होंने एक नियर बाय एक अपार्टमेंट में वो रेंट पे रहने लगे। एंड व्हेन आई वाज वाचिंग दिस थिंग दैट दे वर क्लियरिंग दैट डेब्रिस, जब वो वहां से डेब्रिस हटा रहे थे, वो रबल हटा रहे थे, रेमिनेंट्स को हटा रहे थे, आई वाज होपिंग दैट आई वुड फाइंड माय कैट आल्सो, बट आई कुड नॉट फाइंड, आई कुड नॉट फाइंड हर। सो दैट वाज अगेन द शॉकिंग एन अटैक टू हिम। तो इसके लिए उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। उसको याद आ रहा था हाउ डेड how his cat used to behave with him. She used to run after him, she used to climb up into his robe, she used to get into his pocket, and she used to sleep in his pocket, and he was missing her terribly. ठीक है, अब ये बैड न्यूज जो थी कि मेरे घर पे आग लगी, दिस वाज माय फ्लाइट। फ्लाइट मतलब होता है जो भी आपका लाइफ का दुख होता है। तो दिस वाज माय फ्लाइट एंड एवरीबॉडी वाज अवेयर ऑफ इट, एंड इन माय न्यू स्कूल एवरीबॉडी वाज आस्किंग अबाउट इट। तो मुझे और भी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। मुझे लगा था कि जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फायर इन माय हाउस। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आई डिड नॉट वांट दिस काइंड ऑफ अटेंशन, कि सबको मुझे सिंपैथी, ऐसा मुझे अटेंशन थी, ऐसा अटेंशन मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट डे स्कूल में बहुत ही अजीब सा बिहेव एवरीबॉडी वाज डूइंग, एवरीबॉडी वाज बिहेविंग स्ट्रेंज विद मी, एंड आई वाज गेटिंग रेडी फॉर माय जिम क्लास के लिए। और मैं अपने, आपको पता है स्टूडेंट्स के लॉकर्स बने हुए होते हैं जहां से आप अपने क्लोथिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसमें बुक्स रखते हैं। तो अपने लॉकर पे खड़े होकर जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, एंड पीपल एंड द स्टूडेंट्स उसके आगे पीछे घूम रहे थे। ठीक है, तो उसको बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था ये हो क्या रहा है, और वो मुझे जिम रूम में ले गए और वहां पे एक बिग टेबल रखा हुआ था। दिस इज एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। तो एक बिग टेबल रखा हुआ था जिसके ऊपर हर तरह का स्टफ था मेरे लिए। क्या था? स्कूल सप्लाईज, मतलब बुक्स, नोटबुक्स, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स लाइक जीन्स, टॉप्स, sweatsuits, everything was lying there, and it was like Christmas. तो ये जो सब बच्चे थे, सब ये चीजें मेरे लिए कलेक्ट की गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है, एंड आई वाज ओवरकम बाय इमोशन, आई कुड नॉट कंट्रोल माय इमोशन। ठीक है, the people, the students who had never had never talked to me earlier, I'm really sorry, have never spoken to me earlier, had never talked to me earlier, but coming and introducing themselves to me.
तो वो उसको लग रहा है कि कोई भी जो मुझे जानता भी नहीं था वो अपने आप से आके मुझसे बात कर रहा है, मुझसे डिस्कशन कर रहा है। और उन लोगों ने मुझे इनविटेशन भी दिया कि हम उसके घर, मतलब तुम उसके घर आके रह सकते हो। तो जो ये जो कंसर्न था, इसने मुझे एक नई नई सोच दी। इट टच्ड माय हार्ट और मुझे रिलीफ फील हुआ पहली बार। ओके, मुझे लगता है कि अब चीजें सही हो जाएंगी। और आई मेड सम फ्रेंड्स दैट डे इन द न्यू स्कूल। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद जब उसका घर बन रहा था, अब वो बैठा हुआ था, आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। अब आई वॉज विथ 2 of my न्यू फ्रेंड्स, मेरे 2 नए फ्रेंड्स मेरे साथ थे जो नए स्कूल से मेरे बने थे। ठीक है, तो अब ये देखो बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है ये ऑथर ने। आई इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। एक फायर ने, जो मैं इनसिक्योर फील करता था नए स्कूल में, उस इनसिक्योरिटी को खत्म किया। और इस फायर ने ओपन किया, क्या ओपन किया, दैट द वर्ल्ड इज वंडरफुल एंड द पीपल आर वंडरफुल अराउंड मी। तो फायर ने मुझे बताया, उसको ऐसा फील होता था कि इस फायर के बाद उसको ऐसा लगा कि दैट दे हैव बीन वंडरफुल पीपल अराउंड मी। अब अपने घर को मैं बदलता हुआ देख रहा था, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ भी रीबिल्ड हो रही है। आई हैव ऑल्सो गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ। व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, ठीक है, इन द ऑन द कर्ब मींस ऑन द रिम, मैं देख रहा था कि मेरा नया बेडरूम, आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड्स कि मैं अपना बेडरूम यहाँ, मैं अपना नया बेडरूम यहाँ बनवाऊंगा, मेरा स्टडी रूम यहाँ होगा। तो मैंने देखा somebody came from back and asked does it belong to you, और किसी ने मुझे पूछा क्या ये तुम्हारी है। तो when I turned, I was surprised to see that a lady, a woman was standing there holding my cat. एक वुमेन थी जो एक कैट को होल्ड करके वहां पे खड़ी हुई थी। आई लेफ्ट, आई जम्प्ड अप, और मैंने उसके हाथों से वो क्या ले ली, आई हेल्ड हर क्लोज टू मी। क्या था, कैट था, मैं उसके अपने अपने पास ले आया कैट को, एंड आई क्राइड, आई स्टार्टेड क्राइंग लुकिंग एट माय cat. It was a beautiful orange fur. I was crying into that beautiful orange fur, and she was purring. वो पर कर रही थी happily. मेरे फ्रेंड्स मुझे हक कर रहे थे, वो मेरी कैट को हक कर रहे थे, एंड दे वर जंपिंग अराउंड मी, दे वर हैप्पी फॉर मी दैट आई फाउंड माय कैट, बिकॉज माय फ्रेंड्स न्यू दिस थिंग दैट आई वाज मिसिंग माय कैट बैडली। माय कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड आउट। अब क्या हुआ था, जब फायर लगी थी, वो जो कैट थी वो इतना डर गई थी दैट शी रैन अवे अ माइल अवे। और उसके कॉलर पे दे हैड देयर कॉन्टैक्ट नंबर, एंड दिस लेडी वाज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट, बट the phones were disconnected because everything was destroyed in the fire. And this wonderful lady took an extra effort to find out कि ये किसकी कैट है। तो अब उसको उस विमेन की जो मेहनत थी, हार्ड वर्क था, ये ढूंढने के लिए इसके ओनर कौन है, उसके उससे भी ही वाज टच्ड। एंड नाउ ही वाज सिटिंग देयर विद हिज न्यू फ्रेंड्स, हिज कैट। उसका घर बन रहा था, he was feeling overwhelmed. He had the overwhelming feelings of loss and tragedy. अब सब कुछ जो है, ये जो लॉस और ट्रेजेडी वाली फीलिंग्स हैं वो डिमिनिश हो रही हैं, वो रिड्यूस हो रही हैं। और उसने क्या करना शुरू कर दिया है, आई एम फीलिंग थैंकफुल, आई एम फीलिंग ग्रेटिफाइड फॉर माई लाइफ. I felt gratitude for my life and my new friends. I'm thanking God that I have new friends. The kindness of a stranger. Which stranger? The woman who had brought back the cat, and the loud purr of my beloved cat. I have friends. The lady, the kindness of the lady touched my heart, and the purr of my beloved cat. So the cat was back, so was I. मेरी cat वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ रहा था अपनी जिंदगी में. So this is the story. And if you have any issue, you can write in the comment box. Stay tuned, stay connected for the next video.